یہ ہم گنیش ولیج آ گئے ہیں جو 1000 ایئرس پرانا ہے، اور یہ ان کی فوجی چھاونی تھی جو پرانے رولرز تھے، یہاں پہ ان کی فوجیں ٹریننگ دیتی تھیں اور یہیں پہ بیس تھیں۔ صرف باتھ رومز بنائے تھے کہ تاکہ وہ گرمیوں میں وہاں یہ تین جو ہیں جس کی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں، جی اس کے نیچے یہ 3 باتھ رومز ہیں؟ جی باتھ رومز ہیں سر، صرف باتھ رومز ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف نہانے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس چھوٹے سے سلسلے عماد الدین، میں، آپ کا گائیڈ ٹور گائیڈ مشتاق۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ یہاں آپ لوگ جس جگہ میں کھڑے ہیں یہ اس دور کا ایشین سلک روٹ ہے، ٹھیک ہے، جو پرانے وقتوں میں ٹریڈ کے لحاظ سے چائنا سے، تاجکستان سے یا رشیا سے جو بھی لوگ آتے تھے، جب پاکستان کے ساتھ ٹریڈنگ ہوتی تھی تو وہ اسی روٹ پہ آتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ قسم کا یہ سب سے قدیم ترین آبادی ہے گنیش ونزا، آلموسٹ کوئی 1000 سے بھی اوپر ہے، کیونکہ اوپر کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں رینویشن چل رہی تھی 2009 میں، تو یہاں سے کچھ سیمپل جو ہے ووڈ کا بھی اور مڈ کا بھی، یہ ایکچولی نارویجن جو ایمبیسی ہے اس کی ڈونیشن سے یہ سارا ریسٹور ہوا ہے، اور یہ 2002 میں اس کو ایکچول ایوارڈ تو ملا تھا یونیسکو کو اس میں، لیکن آفٹر یہ رینویشن 2009 میں دوبارہ سے اسے ایوارڈ ملا۔ یونیسکو کا کلچرل ہیریٹیج سائٹ تو نہیں ہے نا ایوارڈ؟ یہ ہے باقاعدہ، اگر آپ جائیں گے تو یونیسکو کلچر ہیریٹیج پہ گنی سرچ کریں گے تو سارا سارا کیونکہ یہ 2 دفعہ ایوارڈ ہے، اور تیسرا برٹش ایئر ویز کی طرف سے بھی ہے ہمارے پاس، جو یہاں برٹش ہائی کمیشن آیا تھا، اور ایئر ویز جو برٹش ایئر ویز ہیں ان کے بھی CEO آئے تھے، ان لوگوں کی طرف سے بھی یہاں تعریفی اسناد ملے ہیں۔ تو آپ اسی روٹ کو لے کے مطلب یہاں سے اگر ہم اسی کو فالو اپ کریں تو یہ سیدھا سر گلگت، اس کے بعد جی وہاں سے 3-4 جگہوں سے پرانے وقتوں میں لوگ سفر کرتے تھے۔ یہ جو روڈ ہے نہیں یہ والا یہ جو کھڑا ہے، جو جس پہ آپ کھڑے ہیں، اگر اس کو ہم فالو کریں تو یہ تھرو آؤٹ یہ گلگت نکلے گا۔ کچھ جگہوں میں اینشین سلک روٹ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، جی بھی گورنمنٹ جو ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ تو یہ والا جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو کارونگ میں یہ تھوڑا سا جو سیڑھی کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ کاروان سرائے ہے اس دور کا، یہ والا کاروان سرائے یہ بھی 1000 سال پرانا ہے۔ جب لوگ ٹریڈ کے لحاظ سے آتے تھے، ایکچولی وہ گھوڑوں پہ یا یاٹس پہ وہ لوگ ٹریول کرتے تھے، تو یہ پیچھے آپ ہکس بھی دیکھ رہے ہیں ادھر، یہ بیسکلی وہی ووڈ ہے جو ہکس ہیں، جی بالکل سٹل وہی ہے۔ تو یہاں پورا استبل بنا ہوا تھا، اس کو ہم نے توڑ کے یہ تھوڑے سٹنگ جو فیمیلز ہمارے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ریسنٹلی اس کو یہ نیچے بھی ہے، دیکھیں نا یہ نیچے بھی ہے، اس کی فنڈنگ جو یہاں پہ بھی ساری جگہ یہ وہی تھی، یہ بعد میں یہ بنایا عورتوں کو بیٹھنے کے یہ گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ تھی، یہ رینویشن بھی کرتے ہیں، اور یہ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے۔ تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثال برٹش گورنمنٹ نہیں ایسا کوئی کچھ بھی نہیں۔ جو بلتت فورٹ ہے، خان ٹرسٹ والے بلتت فورٹ جو ہے، التت فورٹ، ان کو فنڈنگ آتے ہیں۔ تو یہاں 2000 کے بعد ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ میں نے یہاں کوئی ایڈورٹائز کروایا تھا اولپرز کا، سلک بینک کا، کیونکہ میں فوکل پرسن ہوں اس ایریا کا، تو اس سے جو انکم جنریٹ ہوتا ہے آلموسٹ ہم 40 سے 50 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، اور اس پیسے کو ہم اسی پہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں رینویشن میں، اور کوئی ہیلتھ ایجوکیشن ہمارے لیے 2 مین چیزیں ہیں ہونزا میں جس پہ ہم یہ سارا انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ اس کی بھی ایک الگ نوعیت ہے، اس کو جب اسی کے مڈ سے یہ پورا گنیش قلعہ بنا ہوا ہے اسی کے مڈ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی اس پہ جی ہمارا اس میں سمرز میں ہم لوگ چھوٹے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں سوئمنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جی ونٹرز میں ہم اس پہ
स्केटिंग और आइस हॉकी हमारे बच्चे बच्चियां ये सारे इसका पानी किधर से आता है? ये सामने जो आप देख रहे हैं उल्तर ग्लेशियर का ये पानी थ्रू आउट यहाँ आता है। अच्छा अच्छा, वो जो पानी हाँ जी, वो पानी जो हमारा है वो सारा उल्तर ग्लेशियर, ये उल्तर ग्लेशियर हुंजा को जो सेंट्रल हुंजा है अलीबाद से लेके अल्ती तक ये पूरा यही पानी सैराब करता है। इसको हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा आपको गदला लग रहा होगा, लेकिन इसमें सिल्ट और माइका होने की वजह से ये अभी तक इसी तरह है। बट दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। और लोग परेशान होते हैं, यार इतना गदला पानी। हम तो पिए बड़े मजे से। नहीं, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, जो ऊपर उसमें बिल्कुल एक वो चैनल बना हुआ है, ये थ्रू आउट जाता अलीबाद तक, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास टाइम है तो शाम के टाइम इस पे आप उस वाटर चैनल पे आप वॉक करें सेंट के ऊपर, ठीक है, जाके उल्तर जो इंट्रेंस है वहाँ तक। और ये बहुत मज़े का वॉक है। ठीक हसन, आप उस पे फ्रेश भी हो जाएंगे। और यहाँ का पानी हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई फ्रूट या कोई चीज़ इस तरह इसको ठंड आप 10 मिनट रखें, नेचुरली वो बिल्कुल आइस कोल्ड की तरह होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इधर जो आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, फॉरेनर्स हैं या लोकल हैं? ज़्यादातर हमारे पास फॉरेनर्स भी हैं और लोकल भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फॉरेनर्स की है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, दे वांट टू हिट द रोड और वो सीधा खुंजरा पास जाके। कॉमन भी नहीं है ना, मतलब टूर हर बंदा नहीं करता ना, ये मैंने नहीं सुना कभी पहले। नहीं, ये हमारे पास जितना भी है ये एक्चुअली फॉरेनर्स का इनके काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्लो होता है। मलेशियन जो ग्रुप आते हैं ना, उनको मैं लाजमी लेके आता हाँ, जिसमें मलेशियन, कोरियंस, जितने भी दूसरे ममालिक के हैं वो लाजमी गणेश आते हैं। इसके नाम का मकसद क्या है गणेश? एक्चुअली सर ये गणेश नहीं था, ये पहले गणेश था। गणेश हमारे ज़बान में गोल्ड को कहते हैं। और ये जो आप बैक साइड पे हमारे रिवर बेल्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें गोल्ड डस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो पुराने वक्तों में इसको गणेश गांव कहते थे, लेकिन जो ही हम मॉडर्न होते आए तो ये नाम चेंज होते ट्विस्ट करते तो ये गणेश तक आ गया। यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ से दरिया से गोल्ड एक्चुअली यहाँ के लोग जो हैं ये खुद नहीं करते। अच्छा। ये नहीं करते हैं। जो हमारे पास एक ट्राइब है मुहान, आपने कहीं रास्ते में जाते हुए दरिया के किनारे टेंट्स में देखें, एक्चुअली दे आर गोल्ड डिगर्स। वो यहाँ आके इस पे काम करते हैं। वो इक्विपमेंट्स ना हमारे पास हैं। अब मेरे पास जी लैंड है पशु में, मेरे और मेरे दोस्त हैं, ये लेजेंड होटल के ओनर है, कुछ हमारे पार्टनर्स हैं। हम लोगों ने वो पूरा ज़मीन लीज पे है हमारे पास, जिसमें हम चाइनीज़ को अपने साथ मिला के या हमारे साथ कोई पेशावर के 1-2 हैं जो हम इस गोल्ड पे, वो लैंड सारा हमारे पास उस पे है। जो आजकल चलास में वो ग्रुप लगा हुआ सारा, हाँ सारा उसमें एरिया में देखा होगा आप लोगों ने ना, उन लोगों ने जी वो एक्सवेटर्स हर जगह में लगे। देख रहे थे कि वो खाना बदोश है और वो वहीं पे नहीं हुआ। नहीं, वो खाना बदोश नहीं है, वो एक्चुअली वो गोल्ड पे काम करते हैं। और वो क्या करते हैं सर, पूरा दिन वो बच्चों को ना वो देसी तरीके से, उनके पास कोई ऐसी कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो चाइनीज के पास हो गया। वो बिल्कुल देसी टाइप ना, वो पानी निकाला उसको छाना और डस्ट निकला और वो डस्ट। और मजे की बात गोल्ड डस्ट जो है, गोल्ड डस्ट उनके पास सारी जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं, नई दुकान बनाते हैं, तो लाजमी हम गोल्ड डस्ट उसकी बुनियाद में। हमारे लोकल ये आपने सुनी है जो लोकल साथ में से दो कि जब भी ये कोई नया घर बनाते हैं या नई शॉप बनाते हैं तो वो जो गोल्ड डस्ट होती है ना, उसकी फाउंडेशन में ये डालते हैं गोल्ड डस्ट। थोड़ी बहुत कुछ ना उसके लिए ब्लेसिंग या कुछ इस या ये ब्लेसिंग फॉर ईवल आई, यू नो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है ईवल आई से। शुक्रिया। तो अभी हम सर एक्चुअली हमारा गांव 90 घरानों पे वो था जी, 90 घराने 90 घराने थे इसके अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1957 में शिमशाल से फ्लड आके जी दे हिट द विलेज और ऑलमोस्ट कोई 70% हमारा विलेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा। और 1974 में जो बचा कुछ हमारे पास 30% था, उसमें से भी ऑलमोस्ट 15% इस कैश कराकुरम हाईवे में चला गया।
we have left only 10 to 15%. उसमें कुछ हमारे पास वुड कवर मॉस्किज हैं, कॉमन स्पेस है, ये 3 एक वॉच टावर रह गए। ये क्या चीज़ है आपके पीछे? ये इमाम बारगाह है सर, ये अच्छा, ये उसी का 450 जो ओरिजिनल है वो एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन है। एक्चुअली इसमें कम्युनिटी बेस पे हमने इसको बनाया है। इसके अंडरग्राउंड जो है वो हमारा मेडिकल सेंटर है, जो अपने हमने लोकल कम्युनिटी में बनाया है, जिसमें डेंटल और गायनी की फिलहाल हमारे पास सर्विस है। और ये ऊपर मस्जिद है इमाम बारगाह, ऊपर हमारा IT सेंटर बन रहा है। आप जो कह रहे हो कि ये कम्युनिटी बेस्ड है, मतलब इसकी फंडिंग कम्युनिटी बेस्ड है? जी, तो हमारे इसकी कम्युनिटी development जी जितनी है। इसके डेवलपमेंट जो भी है और जो आप लोग विजिट करके थोड़ा बहुत कुछ हमें देते हैं, उसको हम उस जगह में यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा इस गांव का गणेश का ये मेन एंट्रेंस, अच्छा, ये मेन एंट्रेंस था। ये मेन एंट्रेंस था। इसके बाद कोई दुनिया नहीं थी। जो अच्छा। दुनिया थी इस गेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, मगरिब के बाद ये मुकम्मल डोर क्लोज होता था। ठीक है, कोई बंदा एक्सेप्टेबल नहीं था कि इसमें कोई इंटर हो, एक्सेप्टेड विलेज पर्सन्स। लेकिन उसको भी अगर वो लेट हो तो कोई ना कोई हमारे जो गांव के एल्डर है उसको कोई मतलब उस दौर में थोड़ा बहुत कुछ पनिशमेंट या कोई इस तरह का उसको वार्निंग दे के फिर उसको इंटर कर देते हैं। यहाँ रूल्स बहुत सख्त है, अच्छा। क्योंकि वी हैव अ वर्शिप विद नगर पीपल अक्रॉस द रिवर, तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात थे। तो वो इस वजह से ना ये सारे बहुत, इसको चुगताई कोट भी कहते थे। चुगताई कोट। चुगताई कोट इस वजह से कहते थे कि जी ऑल अराउंड वी हैव 14, बिल्कुल ये क्लिफ पे बना हुआ था हमारा गांव। ठीक है। एंड कोई बंदा इजिली इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता था। ये हमारा विंटर हाउस है। हम 3 पोर्शन घरों में उस दौर के बनाते थे, एक विंटर, एक समर और एक टॉप समर के लिए। अच्छा, जो विंटर हाउस होता था उसमें विदाउट विंडो कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। एंट्रेंस में हम अपने साथ अपने केटल्स को रखते थे साथ, ताकि उससे हीट जनरेट हो। उस दौर में इंतहाई क्राइसिस थे यहाँ लकड़ की, दूसरी चीजें जलाने की। तो इसलिए हमारे दरवाजे इंतहाई शॉर्ट और जितने भी छतें हैं पुराने जो हैं वो सारे नीचे होते थे, ताकि इसमें हीट जनरेट हो सके। ठीक है। जो विंटर्स में ये ऑलमोस्ट -30, -35, -40 तक जाता है, ठीक। था उस दौर में। लेकिन नाउ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना कोई ठंड नहीं होता, लेकिन फिर भी -20, 21, 22 तक यहाँ अब भी मौसम जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं सर अंदर। ठीक। विलेज है, उसमें हम लोग इंटर हुए हैं। ये हमारा कॉमन स्पेस, इसमें जुडिशरी और जिरगा जितना भी होता था उस दौर में, क्योंकि मैंने पहले ही एंट्रेंस में बताया कि इससे बाहर कोई दुनिया नहीं थी, कोई घर नहीं थे। जो भी फैमिलीज थी वो यहाँ, और यहाँ एक ही ट्राइब के हैं, बर्चा फैमिली से, और बर्चा फैमिली के बाद फिर दूसरे लोग आबाद हुए यहाँ। तो ये एक्चुअली एक ही फैमिली के हैं, लेकिन हमारा लिविंग स्टाइल लिटिल बिट वो चेंज है हमारा एक दूसरे के साथ भी। मतलब कुछ लोग मॉडर्न हैं और कुछ लोग मिडिल क्लास में हैं और कुछ लोअर क्लास में। बट यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये जी मलिक साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं। यहाँ इस पूरे हुंजा में बिल्कुल सारे एक ही पैटर्न के हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं। ठीक है, गरीब मीन्स कि भाई यहाँ कोई गरीब नहीं है। आपको पूरे हुंजा में ऑलमोस्ट इस एरिया में आपको बेगर्स नहीं मिलेंगे। अपने हुंजा की मैं बात कर रहा हूँ, हुंजा के लोग बेगिंग नहीं करते। अच्छा, एक चीज हमने और भी देखी कि यहाँ कुत्ते भी हमको नजर नहीं आए। यहाँ कुत्ते असल में हैं ही नहीं। अगर आप जब इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आपको रास्ते में जो हमारे पूरा हुंजा का जो डंपिंग है एरिया है, जहाँ हम अपने जो कचरा शचरा ये चीज़ें हम उधर ले जाते हैं, उस एरिया में ऑलमोस्ट कोई 2000 के करीब कुत्ते हैं। अच्छा, 2000।
मतलब वहीं होते हैं। वो वहीं होते हैं सर, उनका काम वही उधर उनका काम वही है, हमने सौंपा हुआ कि जी आपने हमारी तरफ नहीं आना रात को मैं सवाल कर रही थी, आप कुत्ते नहीं नहीं। और यहाँ क्राइम रेट 0 है इस पूरे हुंजा में सर, अच्छा। क्राइम रेट 0%। कल हम लोगों ने यही बात की कि यार यहाँ पे क्राइम रेट 0 ही होगा। क्योंकि सर हमारे पास कोई चोरी डकैती, कोई कत्ल गारत, कोई इस चीज से कोसों मील दूर है। ठीक है। यहाँ 100% लिटरेसी रेट है यहाँ हुंजा में। मतलब घर में मैं मजाहिया बात करता हूँ, मैं घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ जिसमें मैंने बैचलर्स किया है। ठीक है, माशाल्लाह। बाकी मेरे जो आप उस हिसाब से कह रहे, हम 6 भाई और एक बहन है, सारे मास्टर्स हैं। वो माशाल्लाह। ठीक है, तो घर में सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूँ, ठीक। जो मैंने बैचलर्स किया हुआ। उस दौर में मुझे शौक ही नहीं था, बड़े मुश्किल से मैंने बैचलर किया, किताबें शिताबें ये पढ़ने का। तो फिर उसके बाद सर थोड़ा कुछ मैं यहाँ आपके साथ एज ए टूर गाइड हूँ। मैं नेशनल टीम का मैं कोच रहा हूँ ताइक्वांडो का, तो मैं खुद 13 इयर्स में नेशनल चैंपियन रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और 2 दफ़ा मेरे पास साउथ एशिया का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, जो 2 दफ़ा मैंने साउथ एशिया में खेली है। वेरी गुड। तो उसके बाद 2016 के बाद मैं यहाँ अपने गांव शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद से, तो अभी तक मैं यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है। ये पुराने ज़माने के घर हैं। ये मस्जिदें हैं सर, ये मस्जिद हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ हमारे पास 4 ट्राइब्स रहते हैं। हाँ। मेरे दादा था, उसने कहा यार ये तो मैं बनाता हूँ, दूसरे दादा ने कहा यार अगर तूने बनाया तो मैं ये अपना नहीं बनाता हूँ। हाँ। तो इस तरह ये 1000 मतलब उस दौर से भी चलता है। अभी मैं इसको कार्विंग का थोड़ा बताता हूँ सर आपको। जी। इसको आयोनियन कार्विंग कहते हैं। आयोनियन कार्विंग। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब चाइना पे हमला करने के लिए आया था, तो लास्ट पड़ाव उसका यही गांव था, ये वाला। हाँ जी, वहाँ से जो बच्चा फैमिली है उसका स्पेशलार था, उसी से हमारी लड़ाई चलती आ रही है। वो एक्चुअल हमारे दादा हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं जो छतराल में बंगूरी कहलाता है। नहीं, वो डिफरेंट है। अच्छा, वो भी है हमारे उससे ना है, कोई लिंक तो होगा। लिंक है क्योंकि वहाँ भी, जितने भी बॉर्डर्स पे हैं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे तो उसने हर ट्रूप्स अपने कुछ बंदे कुछ छोड़ दिए, बट वो जब इस्लाम आए तो वो इस्लाम उन लोगों ने कबूल नहीं किया। अब तक वो इसी तरह रहे, न वो हिंदू हैं न वो बुद्धिस्ट हैं, उनका कोई अलग अपना दीन है। और 4-5 एडीज में यहाँ सब हिंदू थे। अच्छा, इधर हिंदू से बाद में ये फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, बुद्धिज्म के बाद जब इस्लाम आए तो जी इन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट करके बच्चे मोहम्मद सिंह के दौर में ये फिर सारे इस्लाम हिंदू हुए। ये इस तरह है जैसे नेपाल में या इंडिया के कुछ पहाड़ी इलाकों में। हाँ जी, उसी तो ये तरह उस था। है। ये अभी आप यहाँ से जाते हुए जाएंगे तो यहाँ कार्विंग देखेंगे, अपना स्टोन कार्विंग है। ठीक है, इसे सेक्रेट रॉक्स के नाम से यहाँ पे है रास्ते में। यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव करेंगे, आएगा आपके लेफ्ट साइड पे, उस पे बने। तो एक्चुअली यहाँ उस दौर में जो किंग कुशल थे, किंग कुशन, उसके दौर में यहाँ बुद्धिस्ट अपना वो हुआ कर, हिंदू हुआ करते थे। और वो हिंदू कोई भगवान या कोई इस तरह स्टूपा की वो नहीं करते थे। एक परिंदा था बदा, उसके पूजने वाले थे। बाद में फिर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ। अशोका जब आया इधर जी, इस एरिया में ना, फिर इन लोगों ने जी श्री गणेश, मतलब ये हमने सुना है यहाँ जो आसार कदीमा है, वो कहते हैं कि जी इस एरिया में श्री गणेश का स्तूपा भी कहीं दफन है। अच्छा, लेकिन वो कौन सी जगह है हमें पता ही कोई नहीं। वो कुछ इस तरह कहते हैं, कुछ वो कश्मीर का जो शारदा है, जी जी, उधर वो शारदा किला कुछ उसमें कहते हैं शिवलिंग। बिल्कुल इसी तरह इसी तरह मतलब डिफरेंट जगह डिफरेंट जगह। कुछ तो है, जो वो एक ही है। अयोन कबीला आया था, एक्चुअली कार्विंग पे मैं आ रहा हूँ, जो अयोन कबीला आया तो उनका जो नेशनल एनिमल था वो बुल था। तो इससे आप देखेंगे कि उन लोगों ने अपना आप को इस कार्विंग में उन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। और इसमें ये आप देख रहे हैं, इसमें वो बुल हॉर्न्स, ये चीजें बनी हुई हैं। और इसमें ये लोटस फ्लावर भी बना हुआ है, यहाँ स्वास्तिका भी बना हुआ है। ये बहुत वो हिंदू बुद्धिज्म सारा ये मिक्स उस मिक्स दौर में होपफुली उसमें जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी होंगे, हाँ, जाहिर है। उसमें हिंदू भी होंगे, और उसमें डेफिनेटली मुस्लिम भी होंगे।
تو وہ ہے تو یہ ماسک، لیکن جو کارونگ جو آپ کو دکھایا کاریگر تھے وہ جو کاریگر تھے ان لوگوں نے اس کو جی اس طرح کی ضرور رکھا. اب یہ آئونین کارونگ ہو گیا. اس سائڈ بات ہے یہ تبتین کارونگ ہے، تبتین کارونگ ہے. اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی سارے نا جو آئون کارونگ ہے یہ بالکل ڈیپ میں. تھوڑا میں اچھا جی سر یہ تبتین کارونگ ہے. اس کارونگ میں اور اس کارونگ میں کافی ڈفرنٹ، یہ کافی ڈیپ کارونگ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں میں ڈیپ کارونگ ہے اور کچھ جگہوں میں بالکل سکن کے اوپر ہے. تو یہ مکس کارونگ ہے تبتین اور اس کا نا یہ کلچر ان لوگوں نے ادھر. تو یہ 4 مسجدیں ایک ٹائم پہ تو نہیں بنی ہوں گی نا؟ نہیں الگ الگ یہ الگ الگ ٹائم پہ بنی ہے. اور یہ 1003 یا 1002 سال ہوئے ہیں اس کے. یہ جو ہے آلموسٹ کوئی 900 کچھ اس طرح کی. مطلب 100 سال کے بعد جیسے وہ ڈفرنس آتے رہے نا خاندان پھر وہ بناتے رہے.